Good evening, friends. Welcome to your Learner 171 channel. Let us do analysis for Wednesday, that is 16th of August 2023. But before going any further, let us analyze what we discussed Friday for Monday, right? So we discussed that if we open flat or gap down or कोई भी candle अगर Nifty में if it is breaking on 15 minutes, what 19380 के नीचे we can have the target of 19300. Similarly, Bank Nifty में हमने कहा था कि below 44100 we have the target of 43800. अब हुआ क्या, in first 15 minutes itself both Nifty and Bank Nifty had hit our target, right? दोनों Nifty और Bank Nifty ने अपना इंट्राडे का टारगेट कंप्लीट कर लिया था. अभी जिस किसी को भी anyone who got the opportunity in first 5 minutes itself to capitalize this right, in order to gain this gain, in order to take this gain, that person would have entered and must have gained profit, right? Here in Nifty as well as in Bank Nifty too. But see what happened once we reach to the intraday support level, right? जो हमने कहा था कि Nifty में क्या है कि on weekly basis we said only if it closes below 19,250 we will take weekly, right? Not for Bank Nifty, we didn't discuss Bank Nifty ka weekly, we just discussed intraday. But in Nifty we discussed only if it closes below 19,250. And another thing is intraday पे जब अपना target complete हो जाता है, right? When it came closer to 19,300 here, and again when here it came closer to 43,800. Just look at the price action. Just let me close this volume so you may see it perfectly. So here it is closed. Now again just look at this price action. What happened here? It again started making hammers at the support, right? It again started making hammers at the support. And this we have discussed in so many videos. अगर जो भी अपना support है, whatever is the target price, उसके पास if you see hammers are being formed और hammers form होने के बाद उसका वापस लो नहीं ब्रेक हो रहा है. Remember we always say that in the lower highs and lower lows, whenever such price action is happening, उसका वापस लो ब्रेक हो जाए, then we may re-enter with 30%, right? But उसी का अगर हाई ब्रेक हो रहा है, again if the high is only getting broken, right? अगर हाई ब्रेक हो रहा है, it is always better to exit. And if you don't exit, entire premium what you have gained will be eroded, right? Because look at the structure, it changed into now higher high and higher lows for the intraday, right? For the intraday. That is the reason we say that कि support के पास ऐसा price action आ जाए, better exit and re-enter only if उसका low break होता है, right? This we have discussed so many times. This happened in Nifty also, and similarly if you see in Bank Nifty also. Bank Nifty में भी exactly ऐसा ही price action आज हुआ, right? In Bank Nifty, where it went into intraday higher highs and higher lows, right? Intraday higher highs and higher lows. But in the morning itself, it gave good opportunity in Nifty as well as Bank Nifty also. It's okay if after seeing 15 minutes candle you didn't take this opportunity, right? ऐसा ही आ गया. और अगर किसी को पहली 5 minutes में ये मिल जाएगी, it is well and good. So that is okay. It is good as long as you didn't re-enter here. यहाँ पे सोच के कि हैमर के बाद वापस नीचे जाएगा. It is better to let the price action happen first, right? कि पहले price action ऐसा हो रहा है, break कर रहा है, and उसके बाद you are re-entering. So that was the overall scenario, right? For weekly, we said that only if it closes below 19,250, right? If you listen the video again, you may understand that. Now, as it has closed flat itself, right? Today's closing is again flat, giving the opportunity in the morning itself, again closing flat. So what further? What for Wednesday now? So in order to go for on Wednesday, let us come on first of all on monthly frames, right? The reason in order to explain monthly frame is I want to tell you that see, look at this. 1 मार्च के बाद यानी फॉर अप्रैल सीरीज दिस वाज द फर्स्ट ग्रीन बुलिश कैंडल. उसके बाद सेकंड में वापस बुलिश कैंडल, उसके बाद जून बुलिश कैंडल, अगेन जुलाई बुलिश कैंडल, अगस्त द मंथ इज नॉट कंप्लीटेड, राइट? मंथ विल बी कंप्लीटेड एज ऑन 31st of August. पर अगस्त की कैंडल ने दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम इट इज ट्राइंग टू अप्रोच प्रीवियस मंथ का लो, राइट? इट हैज नॉट ब्रोकन, आई एम नॉट सेइंग इट हैज ब्रोकन, इट इज अप्रोचिंग प्रीवियस मंथ का लो. नहीं तो सिंस अप्रैल का मंथ नन ऑफ द सिंगल मंथली कैंडल ऑन डेट्स फ्रेम या इंट्राडे फ्रेम, कोई भी वीकली फ्रेम्स पे प्रीवियस मंथ के लो के पास निफ्टी में कोई भी कैंडल अप्रैल के टाइम से नहीं आई है, राइट? यानी अप्रैल का लो देख लो, ये कहां पे 17,312, राइट? उसके पहले मार्च का लो कहां पे था? मार्च का 16,828. तो इट इज मोर देन 500 पॉइंट्स फार अवे, राइट? यहां से भी वापस अभी ये लो कहां पे था? 17,300. वेयर इज दिस लो? इट इज एट 18,042, राइट? अगेन वे टू फार. अभी ये 18,042 के बाद लुक एट दिस लो, अगेन 18,464, 400 प्लस पॉइंट्स फार अवे, राइट? यहां से अभी ये दिस इज 18,464 फॉर जून. व्हाट इज दिस जुलाई का लो? जुलाई का लो इज 19,234, राइट? अगेन 500 पॉइंट्स फार अवे. बट नाउ लुक एट द अगस्त लो. जुलाई का लो कहां पे था? जुलाई का लो इज एट 19,234.
और अगस्त का लो कहां पे, इट इज एट 19,257. सो दिस इज जस्ट 20 प्लस पॉइंट्स का डिफरेंस, 23 और 24 पॉइंट्स का डिफरेंस, राइट. एंड अगेन दैट इज द रीजन नाउ इफ दिस लो कैन बी ब्रीच्ड ऑन डेज फ्रेम, राइट. अगर ये लो ब्रीच हो जाता है तो फिर ये जो प्रीवियस स्विंग हाई है, दिस स्विंग हाई विच कम्स क्लोजर टू 18,877, 18,880 के पास, इसके पास आने के निफ्टी के ज्यादा चांसेस है, राइट. ये कब है, अगर डेज क्लोजिंग पे प्रीवियस मंथ का ये जो लो है, राइट, प्रीवियस मंथ का लो यानी कौन सा, जुलाई मंथ का, जुलाई 2023 का लो जो कहां पे था 19,234. Have we broken it yet on August का month? No, we have not yet broken on August, but we were closer to it, right? So इसीलिए डेज क्लोजिंग पे अगर ये ब्रेक हो जाए, डेज क्लोजिंग क्यों, क्योंकि दिस इज मंथ का सपोर्ट, सो एटलीस्ट अ डे शुड शो दैट इट इज एबल टू ब्रेक, राइट. इफ अ डे इज एबल टू शो दैट, देन वी मे कंसिडर कि हाँ और नीचे जा सकता है. फर्दर इट कैन गो मोर फर्दर डाउन, दैट वी विल ऑल्सो डिस्कस व्हेनेवर दैट हैपेंस, राइट, व्हेनेवर दैट हैपेंस. बट यहां से अगेन देयर कैन बी गुड अपॉर्चुनिटी, राइट. So that is one thing on monthly frames. Now secondly, if we come back on days candle, right, अभी days candle में क्या हुआ है, after such a good selling going on week to week basis, like last 3 weeks, if you see previous 3 weekly candles are all red, right, 1 2 3 weekly candles are red after seeing this 17 July ka high, right, which was closer to 20,000. We have seen 3 back to back weekly reds, and today when the days candle on Nifty 50's price action tried approaching previous low, right, जो मंथली लो अप्रोच कर रहा था जुलाई का, वहां से एक पंप आया है. इसलिए आज की ये जो कैंडल डेज पे, इट इज लाइक अ हैमर, राइट, इट इज लाइक अ हैमर. considering that and again coming back on 15 minutes frame, realizing that कि आज we have closed flat, right. So that is the reason जब तक अभी वापस we do not go below this, right, वापस 19,230 के नीचे, भले आज का लो 19,256 था, but why we are considering 19,230, because that is the strong support जहां से बाउंस मिला है. कौन सा सपोर्ट, जुलाई मंथ का, इसलिए 19,230 के नीचे we will again go strongly bearish, right, strongly bearish. 19,230 के नीचे we will go strongly bearish अगर इसके नीचे प्राइस एक्शन मिल जाए तो. पर अभी इस रेंज के लिए क्या, What for this range? Now seeing that since 27th of July, जब से अगस्त मंथली एक्सपायरी शुरू है, राइट, 20th जुलाई से तो हम लोग डाउनवर्ड फ्रेम पे, पर 20th जुलाई, 31st जुलाई, this was all, this both dates were part of August expiry, right, अगस्त की एक्सपायरी. That is the reason if when we are into this downward trending line, so it's quite obvious we are not considering bullish scenario, right. इस यहां तक तो जब तक ये लाइन के नीचे we are not considering bullish scenario. And also if you remember in previous weekly video we had discussed that 19,666 क्या है, ये जो previous weekly candle है, ये जो, let me again close this line so it will be properly visible, ये जो previous weekly है जिसके बाद वापस एक weekly red बना, इसका ये जो opening point है that is 19,666, इसी के ऊपर द मिड जोन वी विल बी अगेन स्ट्रांगली बुलिश, राइट. अगर कोई भी डेज कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे, देन वी विल बी स्ट्रांगली बुलिश, राइट. सो अगेन नाउ कमिंग बैक ऑन 15 मिनट्स and understanding the scenario for Wednesday, that is 16th of August. So now what? So now if we open flat, अगर हम लोग फ्लैट खुलते, राइट, फ्लैट यानी कहां पे 19,413 के पास, अगर इसके आसपास कहीं पे भी खुल जाते हैं, राइट, कंसीडरिंग द लास्ट 30 मिनट्स का एवरेज, द क्लोजिंग इज 19,434, ओके. सो 19,434 के पास कहीं पे भी खुल जाते हैं, यहां से आई वुड नॉट कंसिडर एनी बुलिश सिनेरियो, राइट, एज लॉन्ग एज वी आर इनसाइड दिस लाइन. यहां से वापस ये लाइन कितनी दूर है, इट इज एट 19,500 वगैरह, इसके पास पहुंच भी गए, फ्लैट खुल के ऊपर जा रहे हैं, आई एम लिविंग द अपॉर्चुनिटी, आई एम नॉट बाइंग. गैप अप खुल के भी इसके पास जा रहे हैं, आई एम लिविंग द अपॉर्चुनिटी फॉर दैट डे, राइट, फॉर दैट डे. कोई भी अभी बुलिश सिनेरियो ओनली इफ वी गेट आउटसाइड दिस लाइन, राइट, ये जो डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन के ऊपर चले जाए तो you may see some candle on 15 minutes जो इसके बाहर है, that is just like shadow on days frame, right, days frame में वो shadow की तरह है. So we are not considering bullish scenario here. So what if we open flat, flat खुल के ऊपर जा रहे हैं, we will avoid flat खुल के इंट्राडे के लिए, फ्लैट खुल के इंट्राडे के लिए बेरिश सिनेरियो अभी ये जोन के नीचे कंसिडर कर सकते हैं. ये जोन के नीचे क्यों, क्योंकि आज की जो ओपनिंग थी 19,380 के नीचे जो ओपनिंग मिली थी which was closer to 19,392, राइट. यहां से जब नीचे आए उसके बाद लुक एट दिस रेजिस्टेंस पॉइंट, राइट, यहां से सेलर्स ने वापस कोशिश की बट दिस बुलिश हैमर का सपोर्ट इससे ब्रेक नहीं कर पाए, they were not able to break this point. इसलिए ये कहां पे आता है, this comes closer to the low of 19,340, okay. So if we open flat, फ्लैट खुलने के बाद if we are able to break this low, right, which is at 19,340,
फ्लैट खुल के इफ वी आर एबल टू ब्रेक दिस लो एट 15 मिनट्स का कैंडल का क्लोजिंग, राइट, 15 मिनट्स, लेट दैट कैंडल क्लोज विद दिस टाइप ऑफ प्राइस एक्शन और दिस टाइप ऑफ प्राइस एक्शन और दिस टाइप ऑफ प्राइस एक्शन, ऐसा प्राइस एक्शन भी चलेगा, ऐसा भी चलेगा, ऐसा भी चलेगा, this type of price action, ऐसा भी चलेगा, ऐसा भी चलेगा, right, this type of price action, this is also okay, right. If this type of price action we see on 15 minutes candle closing which is closing below 19340, this type of red candles, right, if this type of red candles are happening, that we mark only from here, I would consider a put buying opportunity for the target of 19230, right, for the target of not 19230, sorry, today's low which was closer to 19250. Okay, I will consider the target for 19250 only if we open flat 19413, say yes it is far away, I understand it is far away, that is the reason यहां से वापस क्या ये जो स्विंग बना, ये स्विंग ने नीचे जाने की जगह ऊपर गया है, राइट, दिस स्विंग अगेन वेंट अप, सो यहाँ पे बायर्स आर एक्टिव. This is the point where buyers are active. That is the reason I do not want to take any any put opportunity here, right? Any put opportunity. And this is the lower highs and lower lows का swing, right? Lower highs and lower lows का swing. इसलिए यहाँ पे call की opportunity भी नहीं. So put की opportunity वापस कहाँ पे? Let me remove all the lines again. Only if ये hammer का support, at what, at 19340, if it is broken with the candles that I had shown previously, right? वीडियो की शुरुआत में जो कैंडल्स दिखा है उसी तरीके के रेड कैंडल से इफ 19340 इज ब्रोकन, आई वुड कंसिडर अ पुट अपॉर्चुनिटी फॉर द टारगेट ऑफ 19250, राइट, फॉर द टारगेट ऑफ 19250. और अगर 19 यहाँ पे 340 ब्रेक कर दे, एसएल आई विल कीप क्लोजर टू दिस स्विंग, राइट, एसएल आई विल कीप क्लोजर टू दिस स्विंग, क्लोजर टू 19380. 19380 ब्रेक हो जाए, आई विल इमीडिएटली एग्जिट, राइट. 19340 यहाँ पे तोड़ने के बाद वापस 19380 ब्रेक करता है, आई विल टेक द एसएल ऑफ 40 पॉइंट्स, इमीडिएटली एग्जिट. Only if again 19340 can be broken. Only if again 19340 can be broken with the same candles that we have marked in the beginning of the video. वैसे ही candles के साथ ऐसे तरह के this type of candles, if they are breaking 19340 again, only then I will consider the put opportunity. This we do twice, right? Let it be Nifty or Bank Nifty, this we do twice. यहाँ से I would consider the put opportunity as long as again lower highs and lower lows are going on for the target of 19250. वापस से now again closer at 19250. यहाँ से if it is breaking swing high, I will exit 70%, right? The same strategy. I will exit the 70%. Again, if it is able to swing, able to break swing low, only then I will stay in the trade, right? Only then I will stay in the trade as long as again lower highs and lower lows are going on, right? As long as it is going on. यहाँ पे आके भी पहले स्विंग हाई के पास भी आके दूसरा स्विंग हाई भी तोड़ देता है, I'll exit completely. That is the scenario if we open flat खुल के यहाँ पे नीचे है, flat खुल के if we are going up, I am leaving the trade, right? I do not want to take any bullish scenario. That is flat. If we open gap up खुल के ये लाइन तोड़ के ऊपर चले जाए, I do not want to take buy trade at least for that day. Let it go up, let it pump 100 points, 200 points for that day. Let it show that it is able to survive above this line, right? ये जो downward trending line चली आ रही है, this is going on since what? Since 27th of July. That is the reason. If it is able to break this and a day's candle can survive above this line, let it survive. उसके बाद for the next day, we will consider buying scenario. But till then, I do not want buying scenario. If we open gap up, right? Flat खुल के ऊपर जाए, we are avoiding. Flat खुल के नीचे जाए, we already discussed. Gap up खुल के ऊपर जाए, we are avoiding. Gap up खुल के भी, कोई भी gap up खुल के भी, if we open gap up, right? We have closed at what? At 19434. So यहाँ से if any gap up happens closer to what? Closer to any this swing, right? ये पुराना swing 19480 के अंदर, 19480 के अंदर कोई भी गैप अप हो जाए, 19500 के ऊपर हो जाए, आई एम क्लियरली अवॉइडिंग. पर 480 के पास कोई भी गैप अप हो जाए, 480 के पास कोई भी गैप अप हो जाए, एंड विद दिस गैप अप इफ इट इज एबल टू कम बिलो आज का क्लोजिंग, टुडेज क्लोजिंग, टुडेज यानी कौन सा, मंडे का क्लोजिंग, इफ एनी गैप अप इज क्लोजर टू 19480 एंड फ्रॉम दैट 19480 का पॉइंट इफ इट इज एबल टू ब्रेक टुडेज क्लोजिंग व्हिच इज 19400, सो व्हाई एम आई लिविंग 80 पॉइंट्स, क्योंकि यहां से व्हाट इफ शॉर्ट कवरिंग हैपेंस, राइट, एंड इफ इट क्लोजेस अबव दिस पॉइंट, दैट इज द रीजन आई वांट टू लिव दिस 80 पॉइंट्स ओनली विद द गैप अप विद इन फर्स्ट 2 आवर्स, 11:30 के अंदर ही. ऐसा भी नहीं कि गैप अप हो गया और बाद में आफ्टर 1:30 पीएम 2 पीएम इट इज कमिंग बिलो टुडेज क्लोजिंग, राइट, ऐसा नहीं. गैप अप हो जाए, गैप अप होने के बाद इफ इट इज एबल टू कम below today's closing, that is 19434, or I will not even wait for 19434. What is this low? Let me check what is this low. This low is at 19408, so I would consider 19400. gap up खुलने के बाद भी
within first 2 hours, that is before 11:30 am, if it is able to come below 19400 again with the same type of red candles that we marked earlier, right, at the beginning of this video, this type of red candles, if it is able to come below 19400 with this type of candles, right, on 30 minutes frame. Why 30 minutes frame? क्योंकि it needs to show कि higher frames are also going for lower lows, right, यहाँ पे. So 30 minutes के frame पे now, for flat we consider 15, यहाँ पे 30 minutes. 30 minutes के frame पे if it breaks 19400, only then I will consider a clear cut bearish scenario. Then I would consider the bearish scenario again to the previous low, right. यहाँ से वापस previous low के पास आने के लिए, as long as again lower highs and lower lows are going on. Swing high gets broken, I exit immediately. वापस से swing low gets broken, I re-enter, right. This put buying scenario in the gap up I will consider only if gap up खुलने के बाद भी it is able to break 19400, it is able to break 19400 with the types of candle we have marked, right, with the types of candle we have marked on 30 minutes का frame. ऊपर ही जा रहा है, we are avoiding, right. That is gap up scenario. We discussed gap up if it is going up, we discussed gap up if it is going down, we already discussed flat scenario. What about gap down? Any gap down if it happens below 19340 का point, right. If gap down is happening below 19340 or 340 के नीचे, again if first 15 minutes candle turns this way red, this way red, this way red, this way red, not like this hammer, नहीं ऐसा डोजी की तरह नहीं या फिर हैमर की तरह नहीं जहां से प्राइस वापस ऊपर ही जाए, not like this hammer also. This is red, but look when it turns into hammer, previous hammer यहाँ पे भी ready है, but when it turns into hammer, see how price action is going up. इसलिए ऐसे नहीं, this type of price action, this type of price action, this type of price action that we again marked, right, previously also, कि अगर 19340 के नीचे ही गैप डाउन मिल जाए और पहली रेड बन जाए 15 मिनट्स की, उसका लो वापस जो भी कैंडल ब्रेक करे, फ्रॉम हियर वी आर इंटरेस्टेड इन पुट एज लॉन्ग एज लोअर हाइज एंड लोअर लोज आर गोइंग ऑन again for the target of 19250, right, again for the target of 19250, that is if we open gap down below 19340. Even if we open below 19300, I would consider the same price action, right. अगर 19300 के पास भी खुल जाए और first 15 minutes की कैंडल ऐसी रेड बनती है, the candle that we marked from the beginning of the video, उसका लो ब्रेक हो जाए, again we are interested in the in the put buying opportunity as long as lower highs and lower lows are going on. Swing high gets broken, we exit. वापस से swing low gets broken, we re-enter, right, we re-enter. This we will do only twice, not more than twice. गैप डाउन के सिनेरियो में भी टारगेट्स आर टिल 19230 टू 19230 यहां से भी ओनली इफ द लो इज ब्रोकन, ओनली देन वी स्टे इन द ट्रेड. वापस आज के जैसे अगर हैमर्स बन जाए जो पुराने स्विंग हाई तोड़ रहे, देन वी एग्जिट, राइट, देन वी एग्जिट. यहां से वापस लो तोड़ रहे, देन ओनली वी कंसिडर इट फॉर सेकंड. दैट इज गैप डाउन सिनेरियो. व्हाट इफ गैप डाउन में पहली कैंडल अगर ग्रीन बन जाए, गैप डाउन में अगर पहली कैंडल ग्रीन बन जाए, ग्रीन बन के ऊपर जा रही है, लेट इट गो अप, राइट. गैप डाउन में फॉर इंट्राडे आई मे कंसिडर वन बाइंग अपॉर्चुनिटी. गैप डाउन, नॉट गैप अप सिनेरियो, राइट. गैप डाउन में कब? अभी इंट्राडे में बाइंग, क्योंकि गैप डाउन में all the way from 19230 we went all the way up for 19450, right. यहां से अगर बायर्स ने इंट्राडे में स्ट्रेंथ दिखाई है, सो यहां से वापस एक पुल बैक की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, राइट. सो कब? अगर कोई भी गैप डाउन 19300 के भी नीचे हो जाए, राइट, 19300 या उसके पास हो जाए, इसके पास होके भी वापस से अगर ये स्विंग हाई ब्रेक कर सके, राइट, इसके पास होके भी वापस से ये स्विंग हाई ब्रेक कर सके. व्हाट इज दिस स्विंग हाई? दिस स्विंग हाई इज क्लोजर टू 19385, राइट. सो गैप डाउन हो जाए, कोई भी गैप डाउन अगर ये पूरा किसके 19340 के नीचे या 19300 के पास हो जाए, any gap down if it is happening below 19340 का range or if it is happening below 19300, right. Any gap down if it is happening below 19340 or 19300, यहां से भी वापस ऊपर जाए, and if it is able to break 19385, right, if it is able to break 19385, यहां से I would consider again the buying intraday, right, intraday buying opportunity. I would consider buying call here यहां से, as long as till it goes till the previous swing high, right. यहाँ पे previous swing high यहाँ तक, पुराने जो ये resistance line है यहाँ तक I would consider the opportunity, right. If it is breaking swing low, अगर वो ये जो वापस से पुराना सपोर्ट ही तोड़ दे, यहां से जहां से 19380 की बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली थी, वहां से वापस अगर 19340 तोड़ दे, आई वुड एग्जिट इमीडिएटली. आई वुड नॉट कंसिडर अगेन री एंटरिंग, राइट. आई वुड नॉट कंसिडर री एंटरिंग. दैट इज ओनली इफ आई गेट एनी बाइंग अपॉर्चुनिटी एट द गैप डाउन, जहां से वापस ये 380 के ऊपर मिल जाए, राइट. 380 के ऊपर मिल जाए, वी विल कंसिडर बाइंग अपॉर्चुनिटी टिल दी स्विंग हाई.
ये पुराने लाइन तक भी वी विल कंसिडर एज लॉन्ग एज अगेन यहाँ से हायर हाइज और हायर लोज इट इज गोइंग ऑन, राइट, कॉल बाइंग अपॉर्चुनिटी। एंड इफ इट इज ब्रेकिंग अगेन 19340 वी विल एग्जिट इमीडिएटली, वी आर नॉट स्टेइंग इन द ट्रेड टेकिंग द एसएल। दैट इज अगर कोई भी गैप डाउन इतना बड़ा मिल जाए जो 340 वगैरह के नीचे होके भी इसके ऊपर जाए, राइट, कोई भी उतना बड़ा गैप डाउन मिल जाए, एनी नॉर्मल गैप डाउन या फिर 50-80 पॉइंट्स के रेंज के अंदर है, देन दैट सिनेरियो इज नॉट एप्लीकेबल, देन वी विल कंसिडर इट फ्लैट ओनली। और फ्लैट के लिए जैसे वी हैव डिस्कस्ड वी विल डू द सेम। ऑन दैट नोट वी हैव कवर्ड ऑल द सिनेरियोज इन निफ्टी। व्हाट अबाउट बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी में नाउ इफ यू सी डेज कैंडल, लेट मी जस्ट रीसेट दिस चार्ट। Okay, so I have reset the chart and bank nifty. Now let me close all the lines. You may see that आज की ये जो डे कैंडल बनी है डोजी बनी है। So we have discussed this many times. जब भी कोई डे कैंडल बैंक निफ्टी में डोजी बनती है, मोस्ट ऑफ द टाइम नेक्स्ट डे का प्राइस एक्शन उसी के अंदर रहता है। लाइक यू मे सी दिस इज द टाइप ऑफ डोजी कैंडल। यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल भी बनी, नेक्स्ट डे का प्राइस एक्शन इसी के अंदर था। लुक एट हियर, दिस इज अगेन अ डोजी कैंडल, नेक्स्ट डे का प्राइस एक्शन वापस इसी के अंदर था। वापस यू में नोटिस अभी वापस कहां पे, यहाँ पे एक डोजी कैंडल है, नेक्स्ट डे का प्राइस एक्शन इसी के अंदर है। दैट डजंट मीन कि हमेशा ऐसा ही होना चाहिए, राइट, दिस इज प्रोबेबिलिटी, वी आर नॉट सेइंग एवरी डे इट विल हैपन दिस वे ओनली। सो लुक एट दिस डोजी कैंडल, नेक्स्ट डे का प्राइस एक्शन इसी के अंदर है। लुक एट दिस डोजी कैंडल, वापस नेक्स्ट डे का प्राइस एक्शन इसी के अंदर है। अगेन दिस वाज द डोजी, नेक्स्ट डे का प्राइस एक्शन इसी के अंदर है। सो नाउ कंसीडरिंग दैट दिस इज द डोजी प्राइस एक्शन मार्किंग द हाई ऑफ द कैंडल एंड मार्किंग द लो ऑफ द कैंडल, there is a high probability the price action can stay in this range only, right, इस रेंज के अंदर ही रह सकता है। So let us come back in bank nifty on 15 minutes. Now we are back on 15 minutes and on 15 minutes आज का हाई लो क्या था, let us mark that. Let me delete all this, just a minute, and let me bring back all the lines. Okay, so bank nifty, one thing that we know in bank nifty, it is strictly following lower highs and lower lows, right? That is the reason seeing आज की डे कैंडल भी, आज के डे कैंडल का हाई क्या था, यहाँ पे था, that was 44,200, और आज के डे कैंडल का लो क्या है, it is closer to 43,776, right? Let me take it closer to 43,776. Okay, so first of all अगर फ्लैट खुल जाता है, फ्लैट खुल के I will not do anything in बैंक निफ्टी। फ्लैट खुल के अगर हाई के पास आए, राइट, फ्लैट खुल के वापस हाई के पास आए, हाई के पास आके ऐसी 15 मिनट्स की रेड कैंडल बनाए, फ्लैट के पास आके फ्लैट खुल के अगर हाई बनाए, हाई बना के वापस ऐसी रेड कैंडल बने, जो रेड कैंडल वापस से फ्लैट का लो ही ब्रेक करे, राइट, फ्लैट का लो ही ब्रेक करे, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड इन पुट अपॉर्चुनिटी टिल द प्रीवियस स्विंग का क्लोजिंग, राइट, टिल द प्रीवियस स्विंग का क्लोजिंग। दैट इज इफ इट इज गोइंग, इफ इट ओपन्स फ्लैट, फ्लैट खुल के 44,200 तक जाए, यहां पे जाके वापस से यही लो ब्रेक करे, तो आई विल शो इट विद द पेंसिल आल्सो, राइट, इट ओपन्स फ्लैट, ऊपर जाए, ऊपर जाके वापस यही लो ब्रेक करे, then I am interested for the rest of the opportunity, right, then I am interested in the rest of the opportunity if it opens flat, ऊपर जाके वापस यही लो तोड़े, तो फ्लैट खुल के नीचे आए, फ्लैट खुल के नीचे आए और नीचे आके ये जो स्विंग था ना, यहाँ से जो हायर हाइज एंड हायर लोज का था, तो ये जो बीच का कंसोलिडेशन पॉइंट है, फ्लैट खुल के नीचे आए, लेट मी इरेज ऑल दिस लाइन, वापस मैं बताता हूँ, फ्लैट खुल के अगर नीचे आए, नीचे आके ये यहां से जो बायर्स ने कोशिश की थी और यहाँ पे ये जो कंसोलिडेशन पॉइंट बनाया, वापस इसी के ऊपर आ सके, राइट, वापस इसी के ऊपर आ सके, व्हाट इज दिस लाइन, दिस लाइन इज क्लोजर टू 44,050, राइट, फ्लैट खुल के अगर नीचे जाए, नीचे यानी पूरा नीचे भी नहीं, यहां से भी कोई भी ये पुराने पॉइंट से सपोर्ट ले ले, ये पुराने पॉइंट से सपोर्ट ले ले, ये पुराने पॉइंट से सपोर्ट ले ले, फ्लैट खुल के लेट इट कम डाउन, वापस इफ इट इज एबल टू गो अबव 44,050, then I would consider a buying opportunity till 44,200, right? This is clearly intraday. This is for clearly intraday, and I would keep the SL वही 15 minutes की, ये तोड़ने के बाद 15 minutes की कैंडल का जो लो है, that low I would consider SL, वो लो ब्रेक हो जाता है, I'll exit only if this high gets broken, I would enter for the call opportunity. That is flat खुल के, दैट इज फ्लैट खुल के अगर नीचे जाए और नीचे से वापस अगर ये ऊपर ब्रेक करे, नीचे यानी कितना 200 प्लस पॉइंट्स इसने नीचे जाना चाहिए, फ्लैट खुल के इफ इट इज गोइंग 200 प्लस पॉइंट्स डाउन एंड अगेन इफ इट इज एबल टू ब्रेक 44,050 ओनली, देन आई वुड कंसीडर द अपॉर्चुनिटी फॉर 44,200, और फ्लैट खुल के ऊपर जाए, ऊपर 44, लेट इट गो 200 पॉइंट्स अप, ऊपर जाके वापस से यही लो, यही कैंडल का लो ब्रेक कर सके, ये कैंडल का लो क्या है, ये कैंडल का लो इज 43,996 only, then I would consider the put opportunity. We discussed both these scenarios, right? Flat खुल के नीचे जाए 200 plus points and if it is pumping above 44,050, we would take the call opportunity for 44,215. वो कैंडल का लो will be SL. Similarly, flat खुल के नीचे जाए, नीचे जाके वापस से if it is able to break
वापस से अगर इफ इट इज एबल टू ब्रेक द स्विंग हाई, राइट, that we already discussed, the swing high which came closer to this point, right? If it is able to break that swing high, we will consider buying opportunity. What if it opens gap up? Any gap up if it is closer to this point, right? Any gap up if it is closer to 44,215 और पहली 15 मिनट्स की कैंडल अगर रेड बना दे, कोई भी गैप अप खुले और पहली 15 मिनट की कैंडल अगर रेड बना दे, उसका लो ब्रेक हो जाए, देन आई एम इंटरेस्टेड इन अ गुड पुट अपॉर्चुनिटी टू कवर ऑल दिस पॉइंट्स, राइट, टू कवर ऑल दिस पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि यहां से वापस एक तगड़ी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, एज लॉन्ग एज अगेन लोअर हाइज एंड लोअर लोज आर गोइंग ऑन। स्विंग हाई गेट्स ब्रोकन, वी एग्जिट, वापस से स्विंग लो ब्रेक ओनली, देन वी री एंटर, राइट। दैट इज इफ वी ओपन गैप अप एंड फर्स्ट 15 मिनट्स का कैंडल टर्न्स दिस वे रेड, दिस वे रेड, दिस वे रेड और अगेन दिस वे रेड एंड द रेड्स दैट वी मार्क्ड इन निफ्टी आल्सो, दैट इज गैप अप का सिनेरियो। गैप अप खुल के भी फर्स्ट 15 मिनट्स की ऐसी रेड बन जाए, इफ इट बिकम्स ग्रीन एंड स्टार्ट्स गोइंग अप, वी आर अवॉइडिंग, वी आर नॉट बाइंग, राइट। उसी तरीके से कोई भी गैप डाउन इस सपोर्ट के पास हो जाए, कोई भी गैप डाउन इस सपोर्ट के पास हो जाए और सपोर्ट के पास होते ही इफ इट मेक्स दिस टाइप ऑफ फर्स्ट हैमर, राइट, 15 मिनट्स में ऐसे दो हैमर बनाए या फिर ऐसा ये हैमर का प्राइस एक्शन दिखा है, ऐसा हैमर का प्राइस एक्शन दिखा है जिसकी बाद की कैंडल उसी के ऊपर जाए, राइट, उसी का हाई ब्रेक करे, then from here I'm interested in buying opportunity till the previous closing, right, till the previous closing, as long as उसका लो नहीं ब्रेक होता, हैमर का लो ब्रेक होता है, we immediately exit, right, we immediately exit from it that is gap down scenario। और अगर गैप डाउन में फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल ही गैप डाउन होके भी फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल ऐसे ही रेड रहे, लेट मी डिलीट ऑल दिस एंड एक्सप्लेन अगेन। फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल ऐसे ही रेड रहे या फिर ऐसी रेड बन जाए, फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल, राइट, ऐसी ही बन जाए और उसका लो ब्रेक हो जाए, ओनली देन वी विल गो फॉर पुट बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर द टारगेट ऑफ 43,500, राइट, considering high of that candle as SL, as long as again lower highs and lower lows are going on. Swing high gets broken, we exit, वापस से swing low gets broken, we stay in the trade. That is the gap down scenario. On that note, we have covered all the scenarios in Nifty and Bank Nifty, right? So that's it for today. The video has been too long. Thank you so much for watching. See you in the next video. Thank you.